Hi, ladies and gentlemen, my friends. I'm from India, and see, welcome to my show. And I'm inviting you to have tea with me. See, this is chai, tea, and this is lychee. This is masala tea. See, this is masala tea I'm having. You can see. I invite you in my because it is very cold. We need tea time to time. This is good for health now to keep warm. You know. Cheers. And believe me, this gives me a mental peace and calm in my body. And why this calmness is needed? This calmness is needed for connecting with my soul with a peaceful environment. Now, now is the time when we are suffering through this pandemic, right? Now is the time when we are actually suffering through pandemic. This is corona kal, time when corona. I know this is vaccine has come out. This is a very good act by our prime minister Narendra Modi ji, and I I am just so grateful to him for doing this great job. Thanks to all the scientists and doctors who are trying to save us. And I'm not a doctor, but I'm grateful to them for making this great move. So I uploaded a video, short video about Big Boss 14 house where I am supporting Rahul Krishna Vaidya. नाम याद तो होगा ना, राहुल कृष्ण वैद, बहुत इजी नेम है. एंड ये जो एक ट्रेंड चला है ना, उस ट्रेंड पे आपको ट्रेंडिंग करना है. और हम लोग ट्रेंडिंग कर रहे हैं बहुत, रात जग जग के. देखिए आंखें सूज गई, एकदम सूजा सूजा सा आंखें. मैं पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगी, हर एक पॉइंट्स को मैं लिख के रखी हूँ. आई एम जस्ट डिकोडिंग दिस series on colors television. It is here, you know, trending. I'm saying Rahul Vaidya for the win. This is something I'm writing and posting my one liner or three liners or something like that in Twitter. You can go and follow me in Twitter. There you will see all Rahul's pictures of since when I am following, I am accumulating all the pictures. I am following all through. Even before Big Boss, he went to what you say a singing reality show, and I voted for him so well. This Indian Idol, he is idol of India. I'm so very big a fan of him, but his real character, a person how he is, I came to know when I saw him actually in Big Boss house, interacting with people, in the when he's interacting with people. Sometimes he is nutcut type, sometimes he is mazedar, sometimes he is very fun loving, and sometimes he healthy flirting. Sometimes he does a little bit of मज़ेदार, वो सब चीज़ें वो करते हैं और हमको बहुत पसंद आते हैं. Even if Disha is outside, then also he gives chance to other people to be seen. And I'm so grateful to God that I know a person like this and I can speak for him like this. But I was searching a platform where I can speak out my heart, whatever I feel. I've dedicated so many songs for him. I've just sang so many Hindi songs and other songs. You can follow me in my YouTube channel. This is my channel, Fantastic Ideas of Global Celebrities with Destiny Light Speaks, or DLS.
देखिए आप सब लोग सेलिब्रिटीज हो, जो भी आप मुझे देख रहे हो यहाँ पे, अब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रही हूँ only because you are viewing me, you are giving me this opportunity to speak to you. I'm speaking to you, but I at the same time also want to speak to you directly. So I want to do this live chat with you. So do subscribe my channel so that I can bring you live. And I must mention, whoever you are, wherever you are, and whatever may be your profession, I'm mentioning again, you are a celebrity for me because you have a story of your own, you have a struggle story. And believe me, you subscribe my channel somehow from your account and come live to that account, your account or your friends accounts. You tell your friends to come to me and talk to me, talk regarding you, and they might subscribe me and they might talk to me. See, this Big Boss or Endemol of Colors TV, they have not the creative team, they have not set me as PR. I am honestly telling you, and my honesty is in my eyes. See my eyes, I am honest about it. It is night, it is night, it is so much dark night, and now this kuttas are dogs and pets are all sleeping. चारों तरफ कुछ डॉग्स ऐसे भौंक भी रहे हैं, आपको डिस्टरबेंस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी रात को मैं बात कर रही हूँ because I just now completed the episode of Salman sir, and you know I told you my in my last video I was emotional uh, seeing his a godly perception. Once he gets emotional, once he gets hurt by seeing people fighting so much with a makeup kit, with a pen, with a kajal pencil, with a lipstick. Oh my God, Nikki Tampoli, why do you have to in the Big Boss house vote in? And now still Nikki Tampoli is here. Now Arshi Khan has been evicted. वो eviction का प्रक्रिया था और आशी खान, I told you last video that आशी खान is evicted. So now निकी तंबोली है और मैं लेके रखी हूँ सब आपके लिए. रुबीना तिलक है, उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड अभिनव जी है, राखी जी है, देवोलीना भट्टाचार्य है, आली गोनी जी है, राखी सावंत जी है. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इन सब के, और सबसे ज़्यादा तो मैं फ़ैन हूँ बॉस राहुल वैद की. वोट करो, उनको जिताओ यार. मैं इनको एकदम उस दिन तो मैं, आप ट्विटर में देखना, मैंने इतना मिलियंस ऑफ व्यू ये आ रहा था, वोट्स आ रहा था, मैंने केक बना के उसका पिक्चर उठा के मोबाइल में उसको ना अच्छे से उसको क्राफ्ट करके उसके ऊपर लिख विख के सुंदर से चम्मच और ये सब प्लेटिंग करके उसको डिजिटली उसको ना लिख विख के मैंने उसको पोस्ट किया है ट्विटर में. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है. क्यों? वो एक इंसान की तरह से डिकोड कर रहा है हर एक चीज़ को. अर्शी रो रही थी, उतना सा टेडी बियर है उसको लेके रो रही थी. उसका दुख दुख है, डेफिनेटली दुख है. अर्शी को दुख लगता है, लेकिन दूसरों को भी दुख लगता है जब अर्शी बोलती है. मेरा पॉइंट ये है, मैं अर्शी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत लाइक करती हूँ अर्शी को. तो मैं बहुत ही क्यूट लड़की है, बहुत ही स्वीट है, मेरे तरह से एकदम बहुत बोलती है. मैं बोलना पसंद करती हूँ, लेकिन उनके तरह से बोल नहीं पाती हूँ. और अर्शी का आपने नोटिस किया होगा, बहुत लहजा है उनका, जो बोलने में एक उर्दू वाला स्टाइल है ना, बहुत मज़ा आता है. आई एम फ्रॉम बेसिकली उत्तर प्रदेश, यूपी, यू नो, in India. So my father was he was like घराना and all. जो राज जो किंग्स के जो घराना होता है, हमारा फैमिली वैसे बिलोंग करते हैं.
So my father could speak Urdu very well. So after my father's death, I've never seen anyone. Yeah, my father expired in 2010 December. But I have after that I have never seen anybody speaking so good Urdu. And after Arshi Khan came, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि मुझे उर्दू सुनने को मिलेगा। लेकिन गालिस भी ना उर्दू में देती है, क्या देती है, मस्त देती है वो अंदर। लेकिन अंदर जो लोग हैं ना उनको देते हैं ना, तो वो लोग पर्सनली लेते हैं। तो उन जो जिन लोगों को पर्सनली हर्ट होता है, सोचो किसको देबोलीना को बोली है, फिर कितने कितने लोगों को बोला है ना, फिर सब मतलब अली गोनी, फिर राहुल को बोला है, फिर अभिनव जी को बोला है, फिर अर्शी बना देगी पापा एक्सेट्रा। वो कविता मुझे आएगा भी नहीं। बहुत सुंदर था, लेकिन मस्त था, सुनने में बहुत मज़ा आया मुझे। बट मुझे एट द सेम टाइम बहुत बुरा भी लगा कि जिनको पर्सनली एक मैरिड मैन को बोल रही है, वो उसके वाइफ के सामने, सोचो मैं हंस हंस के मर गई। और क्या रिएक्शन होगा। तो उन्होंने उस वक्त तो हंस बोल लिया था, तभी उसको लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए था, नहीं अर्शी मत बोलो, नहीं राखी मत करो, जो साड़ी पहनने आई कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। तो घर में तो वो तो बहुत अच्छे से साड़ी भी पहनती है, सब कुछ करती है। तो उनके वाइफ को रिक्वेस्ट करके बोलना चाहिए था ना, इसको आता है, आप देखिए ना, अभिनव को बोलना चाहिए था कि मेरे वाइफ को आता है, आप एक बार उनसे बनवा लीजिए, ये मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। आप बहुत क्यूट हो, आप स्वीट हो, आप सिस्टर लाइक हो, आप मज़ेदार कर रहे हो, ये चीज़ वो कर सकते थे, पर वो किए नहीं। ऐसा नहीं कि वो कंटेंट के लिए नहीं किया। लोग ना आरोप दे देते हैं, जबकि ये बिग बॉस का घर है, एक दूसरे से लड़ के ही आगे जाना है। इतना फाइट करो, इतना फाइट करो, इतना कंटेंट दो, इतना ज़्यादा घमासान करो कि आपको कोई आप ही के बारे में चर्चा हो कि इसने गलत किया, गलत किया, गलत किया, तभी आपको शो में रखेंगे, क्योंकि आपको बैशिंग करना है। तो ये सब एक प्रक्रिया है, इसको ना लाइटली लेना चाहिए, हमको भी इतना सीरियसली नहीं देखना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो एंजॉय करती थी, लेकिन कभी कभी हावी हो जाता। कभी कभी जब मैं सलमान सर को इतना सीरियस देखती हूँ यार, मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। और तभी तो मैं चाहती थी कि कोई मेरा इंटरव्यू ले। मैं बहुत लोगों के पास गई कि मेरा इंटरव्यू लो, मुझे बोलने तो दो यार पब्लिक में मेरा फीलिंग क्या है। लेकिन मैं किसी के ऊपर बायस नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती रुबीना दिलैक रॉन्ग थी उस वक्त, मैं ये नहीं बोल सकती कि उनके पति के ऊपर बोल रहे। सोचो जिनके पति होते हैं और उसके पति के ऊपर कुछ भी बुरा लांछन लगता है, और वो मेंटली कितना कनेक्टेड है उनके पति, उनको पूरा टाइम साथ दिया। कोई कुछ बोलता है एकदम एकदम अपना चेस्ट दे के किसी भी मर्द के सामने आके, राहुल के सामने हो या कुछ हो, अभिनव एकदम पूरा मसलमान आके एकदम टाइट से खड़ा हो जाता है, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अचानक उनका भी गेम थोड़ा सा नीचे गिर गया। मैं तो ये कहूँगी मेरे हिसाब से, मुझे मेरा कोई प्यार नहीं, मुझे कोई प्यार सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इतना आस्ते बोलती हूँ, मैं किसी के बीच में टपक के नहीं बोल सकती। कौन मुझे हायर करेगा बोलो। अब आप बताओ, आप अगर कुछ करना चाहती हो, क्या आप मेरे जैसे धीरे धीरे बोलने वालों, धीरे धीरे मैं जैसे बोलती हूँ, क्या आप मुझे प्यार अपॉइंट कर सकते हो। मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मैं आपके बारे में बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, आई एम एन ऑथर। बट बोलने की बारी आती है ना, सीज हो जाती हूँ मैं। इतना ज़ोर से रुबीना दिलैक जैसे फटाफट फटाफट बोलना एकदम, वो दिमाग का काम है। उन लोगों का अलग ही दिमाग है, झगड़ा पे बोलना। और अर्शी खान की तरह आप मुझे बोलने बोलोगे, मैं क्या बोल सकती हूँ, नहीं। तो इसीलिए कोई मुझे प्यार चूज़ भी नहीं करेगा, कलर्स वाले भी मुझे नहीं चूज़ करेंगे, और एंडोमॉल वाले तो भूल ही जाओ, मैं उनके नज़र में पड़ूंगी भी नहीं। मैं खुद भी जानती हूँ ये बात, मैं अपने आप को बैक स्टेज ही रखती हूँ, और बहुत कोशिश करने के बाद ये एक चैनल खोला है। थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो, भीख मांगती हूँ यार, कर दो सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा। और क्योंकि मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। सिस्टम क्या है ना, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे,
ये अकाउंट लिफ्ट नहीं होगा, तो मैं इस चैनल में आपको इनवाइट करके बातें और आपकी बातें, आपकी राय अब मेरे साथ आप शेयर करोगे, आपकी स्टोरी बिग बॉस के बाद भी ये मतलब हम चालू रखेंगे और बिग बॉस के इस साल के कैरेक्टर्स को लेके करेंगे अंटिल 15th वो जो आएगा। मैं अपने पर्सपेक्टिव बोलूँगी, मैं छोटी छोटी बात पे ना उसमें नहीं जाऊँगी कि इसने गलत किया, उसने गलत किया। मैं ऐसे जो चैनल्स करते हैं मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या अच्छा लगता है मैं बताती हूँ। मेरा पक्ष बताना अच्छा लगता है, कोई सुन रहा है मुझे अच्छा लगता है, उनका क्या फीलिंग है वो भी सुनना मुझे अच्छा लगता है। मेरे तरफ से उनका थॉट अगर रॉन्ग है, सपोज आप मेरे साथ शेयर करते हो आपका क्या थॉट है, अगर वो मुझे रॉन्ग लगे मैं बोलूँगी आपको, देखिए ना मुझे ना ऐसा लगता है, आपको लगता है ठीक है, आपका लगना, बट मेरा लगना भी तो मेरा लगना है ना भाई। तो मैं मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी, मतलब आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगी। एटलीस्ट बिग बॉस देख के मैं इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर आपने बिग बॉस 14 देखा है तो ये झगड़ा तो मैं अपने लाइफ में कभी भी अभी तक नहीं की है यार। बट देखिए मेरे अपने फैमिली में इससे भी ज़्यादा झगड़ा देखा है बॉस। ये लोग फिर भी रुके हुए हैं कि कैमरास है, इनको इमेज कॉन्शियस होके ये कर रहे हैं। लेकिन सोचो मेरे घर में जब मैंने बचपन में वो सब देखा, सर्वेलेंस कैमरा, ये जो मेरे घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये सब सीसीटीवी कैमरा एक्सेट्रा था नहीं उस समय। और वो समय क्या होता है ना, देखो मुझे इतना हंसी आ रहा है और मैं रुक रही हूँ, कोई मुझे प्यार लेगा बोलो? कोई नहीं लेगा। कलर्स चैनल और कोई एक भी कंटेस्टेंट जो जा रहा है अंदर मुझे प्यार करके जाएगा कोई? और ना मैं किसी की प्यार बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि क्या होता है ना, कभी वो इंसान अगर गलत करे तो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकती, मुझे अच्छा अच्छा ही बोलना होगा ना। हे जो सोचो कि रूबीना दिलेक की जो पीआर है, सपोज मैं आपसे बोलती हूँ बिग बॉस हाउस 14 में रूबीना दिलेक की जो अभी प्यार कर रहा है यूट्यूब में, मैंने देखा है, उनको सिर्फ उनके बारे में अच्छा 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 बोलना है कि रूबीना दिलेक तो टॉप में है, उनके साथ देखिए कितना बुरा हुआ, लेकिन वो काम डाउन थी, उन्होंने ऐसे समझा। हालांकि वो स्टोरी कुछ और है। मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप मेरी बात सुनो और रूबीना दिलेक के बारे में जो उन्होंने काम डाउन नहीं किया, उन्होंने देबोलीना को बोला ड्रामा बंद करो। अरे तब तक तो वो हाई हो चुकी है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ रूबीना मैम का, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ रूबीना मैम का। आपने देखा है ग्रेसफुली शी वॉक्स, शी नोज हाउ टू वेयर लिपस्टिक। देखो मेरा भी लिपस्टिक पहना है, उनके तरह तो नहीं हुआ ना, मेरा भी फेस उनके तरह अच्छा तो नहीं है ना। तो उनका मेकअप ब्लेंडिंग, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। मैं तो बन भी नहीं पाऊंगी, मैं तो छोड़ दो। तो एटलीस्ट रूबीना मैम की तरह कोई कंटेस्टेंट होगा तो वो मुझे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी मैं गलती बोल रही हूँ। तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट होगा भाई जो मुझे प्यार लेगा? मुझे कोई प्यार नहीं लेगा। अभी विंदु दारा सिंह से मेरी थोड़ी सी बात हो पाई थी, थोड़ा सा, हाँ। उसमें मुझे इतना अच्छा लगा, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने ऐसा बोला कि श्रेष्ठा, ऐसा करके मुझे एड्रेस करके बात बोली, बहुत मन को छुआ। देखो ये लोग भी इंसान हैं, और जो भी सेलिब्रिटीज़ है ना, मैंने एक चीज़ पता की है, ये बिग बॉस देख के सीखा है, और मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके सीखा है कि इट्स ऑल अबाउट रीचिंग ईच अदर। बिग बॉस भी चाहते कि दर्शक दर्शक कोई भी हो, दर्शक गरीब हो सकता है, दर्शक बड़ा हो सकता है, दर्शक अमीर हो सकता है, चाहे उसका बहुत बड़ा ऐसे फ्लैट स्क्रीन हो जैसे मेरे सामने है, चाहे अभी देखिए मैं तो शुरू में इतनी बड़ी नहीं थी कि इतना बड़ा स्क्रीन अफोर्ड कर सकूं, लेकिन अभी धीरे धीरे काम करते करते हुआ। तो जब मैं शुरू में थी तो उतना बड़ा स्क्रीन नहीं था, उतने 5-6 टीवी नहीं थे। अभी मेरे जहाँ भी जाओ, जिस मकान में भी जाओ, वहाँ पे टीवी है, अभी मैं देख सकती हूँ, सब्सक्रिप्शन है।
तो मोबाइल में भी देख सकती हूँ, टैबलेट में भी देख सकती हूँ। तो धीरे धीरे बनता है ना, तो लेवल्स होता है। तो एक दिन में इंसान बड़ा नहीं हो जाता। तो कोई भी इंसान हो, जो कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस 14 के, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि रीच आउट करना। जैसे कि मैं भी चाहती हूँ, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ सेलिब्रिटी। क्यों क्यों पता है, सेलिब्रिटी बनने में ना मुझे ना बहुत डर होता है कि मेरे पेट में ना, ऐसे पेट में गुदगुदी गुदगुदी सा होता है और बटरफ्लाइज खुल होता है, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा पैल्पिटेशन होता है। और अगर आप बोलोगे कि आप सेलिब्रिटी हो, मैं आपसे बात करने से पहले 3-4 बार टॉयलेट जाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर कुछ नहीं खाऊंगी पूरा दिन। ऐसी हूँ मैं सेलिब्रिटी बनना भी नहीं चाहते यार। आप लोग सेलिब्रिटी बनो, मैं बैक स्टेज आपकी जो आप गलत करोगे, लेकिन हाँ मैं तो देख रही हूँ ना, मैं इंसान हूँ यार, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, रोबोटिक नहीं हूँ। और मैं आपकी पीआर भी नहीं हूँ, मैं किसी की पीआर नहीं कर रही हूँ। मैं कलर्स चैनल के बारे में अच्छा बोल रही हूँ, मैं कलर्स के भी पीआर नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो सीरीज क्या कलर्स ने निकाला है ना, मैं देख देख के ना मेरा ना लाइफ चेंज हुआ है, बिलीव मी। और मैं हिंदी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, लेकिन फास्ट बात नहीं कर सकती, बहुत फास्ट डड 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 डड, जैसे कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में, वो सब नहीं आता यार। मैं कुछ भी देखूंगी ऐसे कलर्स में देखूंगी, आपके सामने रिव्यू पे बैठ जाऊंगी। मैं लिखती भी हूँ रिव्यूज एंड ऑल। अगर आप चाहते हो कि मैं एक लाइव फेसबुक में आप लोगों के लिए पेज बनाऊं, तो आप मुझे सजेशन दो कि उसका नाम क्या रखूं, कि आप ढूंढ के निकाल सकते हो। क्या यही नाम रखूं वहाँ पे? कुछ तो लिंक दो। मेरा एक और फेसबुक में ग्रुप है। देखिए, रुबीना जी बुरे है ऐसा तो नहीं है, अभिनव जी बुरे इंसान है ऐसा तो नहीं है, फिर अली गोनी जी बहुत सुंदर अच्छे इंसान है, दिखते भी अच्छे हैं, सब लोग कैरी करना जानते हैं अपने आप को। राखी सावंत जी तो है ही बिंदास मन, भोला मन है उनका। राखी सावंत जी का मन एकदम मेरे तरीके से है, भोलापन है। फिर आप देख लीजिए निकी तंबोली, उसकी माँ तो उससे प्यार करते हैं ना। जिसकी भी जो भी इश्यूज हो लाइफ में, आज कितना दुख हुआ अब इसको बात करते हुए, जो रुबीना जी है उनको बात करते हुए, 8 साल पुराना उनकी बीमारी है, ये है, बोल रही है पब्लिक में आके, कितना शर्म लग रहा है उनको। क्योंकि उनसे गलतियां हो चुकी हैं, अब लोग पूछ रहे हैं। अब इश्यूज है ऐसे तो है। आप रास्ते में एक इंसान को देखोगे उसका पैर नहीं है, अब जो पैर नहीं है उसको ताना मारोगे कि अब पैर नहीं है, पैर नहीं है, आपके हाथ नहीं है। मेरे हाथ का एक्सीडेंट हो गया था, ये लेफ्ट हैंड मेरा, यहाँ पे प्लेट बिठाया हुआ है, तो मूवमेंट में दिक्कत होती है, ये होता है, इश्यूज है, अभी भी प्लेट है। तो क्या लोग बोलेंगे आप तो गिर गई थी, तेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, अर्शी खान जैसे इंसान तो ताना मारेंगे, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे तो बुरा लगेगा। और मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ तो फिर बाहर मेरे फैंस क्या बोलेंगे? और अगर ओवर रिएक्ट कर दिया देवोलीना की तरह, तो भी क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे कि देख के क्या बोलेंगे? ये एग्जाम्पशन के चलते इंसान बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो दर्शकों, मेरी राय ये है कि ये हम चलो देखते हैं एक साथ बिग बॉस, लेट्स सी इट टुगेदर, लेट्स डिकोड इट टुगेदर। सब्सक्राइब करो चैनल को, आप हमसे आके शेयर करो, वो बात ठीक है, बट लेट्स डू इट एवरीथिंग इन अ पीसफुल मैनर, let's do everything in a chai manner, and let's rock. जय माता दी, लेट्स रॉक। फिर एक बार आऊँगी आपके सामने, ये तो अपलोड करो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, क्योंकि आपसे मुझे बात करना है फैंटास्टिक आइडियाज़ ऑफ ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ विद डीएलएस और डेस्टिनी लाइट स्पीक्स। और मेरी इंडियन नेम है श्रेष्ठा त्रिपाठी। हाँ, मैं ऑथर हूँ। आप मुझसे ज्वाइन करो। ये जो आपकी जो नेचर में भी अगर ऐसे एग्रेशंस है, आप मेरे साथ बात करके काम डाउन कर सकते हो। आप मुझसे बोल सकते हो आपकी क्या इश्यूज है,
कौन सा कैरेक्टर आपने बिग बॉस के हाउस में देखे और वो देखने के बाद क्या फील हुआ, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं किसी का PR नहीं हूँ, बट मैं श्योरली ये सब टैग करूँगी, कलर्स वाले देखेंगे। सो आप अगर मुझे सब्सक्राइब करते हो, आपको भी कलर्स वाले देखेंगे, इतना मैं गारंटी ले सकती हूँ। आई लव यू गाइस। एक ही बात बोलती हूँ, मेरे प्यार में लव लपाटा नहीं है। मैं किसी के साथ लव लपाटा वो सब से मैं थोड़ा हटके हूँ। मुझे अफेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर इंसान अच्छा लगता है। कोई एक आदमी सुंदर दिखता है, वो उसको बोल देती हूँ, आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो, आप बहुत हैंडसम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए मैंने ऐसा बोला। मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं किसी के साथ यार। मैं एक शांतिपूर्ण लाइफ लीड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैरिड पीपल के लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स होता है। देखिए, मैरिज करेंगे तो डिवोर्स होगा, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है ना, लोग हैंडल कर पाते हैं। फिर देखिए अभिनव शुक्ला को, वो हैंडल कर पाता है। लेकिन रुबीना दिलीप को देखिए, वो सब हैंडल कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इन सब चीज़ों से अलग हूँ, लेकिन मुझे फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है। 2 मिनट बैठ के ऑफ़िस के बाद आके एक वीडियो करूँ, चैट करूँ आपके साथ बातें होंगी फ्री, और कुछ ऑनलाइन जाएगा, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और पूरा पब्लिक देखेगी, पूरी मीडिया देखेगी आपको, मैं प्रॉमिस करती हूँ इस चीज़ का। और हम बैठ के बातें भी करेंगे इस चीज़ को लेके। हम इंडिया में घूमेंगे। देखिए, मैं पहले लंदन में थी, वहाँ से भी सोशल वर्क किया है मैंने, इस सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए। ये बहुत पावरफुल नेटवर्किंग है कि जो लोग मुझे जानते हैं। अब मैं इंडिया वापस आई हूँ क्वारंटाइन होके, फिर इधर हूँ। इधर से भी इंडिया के अंदर मुझे ट्रैवल करना होगा 5-6 महीने में, करूँगी ना। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है कि जो भी हो, फ्लाइट में रहूँ, जो भी हो, घर वापस आके दोस्तों के साथ थोड़ा सा बात करने में बहुत मज़ा आएगा मुझे। जुड़ जाओ मेरे साथ प्लीज़, रिक्वेस्ट यू। और मैं और अच्छे से मैं इसको डिज़ाइन करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी, लोगो बनाऊँगी। मज़ा आएगा। आपके साथ फूड रेसिपीज़ शेयर करूँगी, बहुत मज़ा आएगा जब मिल बैठेंगे आप, मैं और मेरी ये मसाला चाय। मज़ेदार है ना? वैसे ये वाला लाइन ना, मैंने वो बैक पाइपर है ना, बैक पाइपर था ना, आप, मैं और बैक पाइपर, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मेरे फादर बहुत बोलते थे, क्योंकि मेरे फादर ड्रिंक्स विंक्स चालू रखते थे, वो बहुत बुरी बात है। जब मुझे जैन फूड खाती हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती। मैं चाय थोड़ा बहुत पीती हूँ, दिन में एक बार मसाला टी पीती हूँ। अगर आप लोग मुझे सजेशन दो कि मसाला टी भी ना पीऊँ, तो मैं ये भी छोड़ दूँगी। और सिगरेट स्मोकिंग जो लेडीज़ लोग करते हैं बिग बॉस हाउस में, वो मैं कभी नहीं किया लाइफ में। मेरे फादर स्मोकिंग थे, उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुआ लाइफ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और एक वीडियो में। आई लव यू गाइस। मैं लव लपाटा नहीं कर सकती आपके साथ, किसी के साथ भी, बट मेरे सोल से एक ऑनेस्टी के साथ, मैं, मेरा लाइफ बहुत स्पिरिचुअल रहा है। मैं टर्बन करती हूँ, ये करती हूँ, मेरा लाइफ बहुत ही स्पिरिचुअल है। पर मुझे इंटरेस्ट है, मुझे कलर्स में क्या हो रहा है देखने में इंटरेस्ट है। और सोशल नेटवर्किंग में भी मैं न्यूज़ फॉलो करती हूँ, वो भी शेयर करूँगी। आई लव यू गाइस। शेयर शेयर विद शेयर विद मी, यू आर सेलिब्रिटीज टू मी। जो लोग भी आप मुझे देख रहे हो ना, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, ये गलत बात है। आप मुझे देख रहे हो मतलब आप सेलिब्रिटी हो। तो आप सब जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करके मुझसे आके मिलो। मैं आपको देखना चाहती हूँ, कौन कौन लोग आप मुझे देखते हो। एक एक जन का मैं इंटरव्यू यहाँ पे ज़रूर लूँगी। मैं आपको इनवाइट करूँगी, नाम पुकार के इनवाइट करूँगी सब्सक्राइबर्स। अगर आप फेक आईडी यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप नेम नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको फ्रीडम है, और वो पूरा पब्लिक देखेगा। आप अपना फेस को डार्कनेस में रख के आप अपना कुछ भी बता सकते हो, लाइफ का एक डार्क सीक्रेट बता सकते हो। और आप अंधेरे में बैठ के बोल सकते हो, आपको फेस दिखाना भी नहीं आया है। अगर पब्लिक तक बात पहुंचानी चाहती हो मेरे ज़रिए, मैं अगर आपका ज़रिया बन सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पब्लिक के लिए करूँगी, सब लोग देखेंगे। आपको, आपके लिए इतने सारे प्रेयर्स आएंगे, कितने माँ के दुआएं आएंगे।
जैसे बिग बॉस खत्म होता है 2 हफ्ते में, मैं ये चालू रखूंगी। मैं भी डर रही थी आपसे मिलने के लिए, आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। पर अब मैं देख रही हूँ, अब डर के मैं लोगों को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं अब बाहर आई हूँ। अब आप भी आ जाओ, मैं भी आ गई हूँ, आप भी आ जाओ। चलो बॉस, एक साथ मिलके, आहा, मिलके जम के मस्ती करते हैं, चल। हम्म। तो 2 हफ्ते हम बिग बॉस को लेके बातें करेंगे ही करेंगे, इसके बाद भी करेंगे। क्या सीखा आज हमने, क्या सीखा बिग बॉस से, कि जो भी रंजिशें हो मन में, जितनी भी माइंड में गलत हो, जो भी हो, वेन एवर यू आर फीलिंग सो बैड, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट बैडनेस। जो और एक नई, जो कल से एक नया एक हफ्ता शुरू हो रहा है, मंडे। हैप्पी मंडे, आज तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हैप्पी मंडे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई लव यू, हैप्पी वीक। बहुत अच्छे से काम करना, अपने माँ से तो बहुत प्यार करते हो आप ऑलरेडी। उनको मेरी जो है नमस्कार बोलना, प्रणाम बोलना, पालगू बोलना। आप अपनी भाषा में समझा देना, मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। और मेरे चैनल को वापस से मैं शेयर करूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर देखने आना प्लीज़। बहुत बहुत प्यार, किसेस, लव्स।